IBC 24 पर महा कवरेज आप देख रहे हैं और ये हो गई है शुरुआत। आप देखें इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी तस्वीरें मिलनी शुरू हो गई। टू द 5 states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji on my right side and Shri Arun Goyal ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. सो फ्रेंड्स, जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, द मिजोरम असेंबलीज टर्म इज ऑन 17th December 23, then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 assembly constituencies हैं, वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग legislative assembly constituencies का 1/6 हैं. और इसी प्रकार से जो इनके electors हैं, जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं. सो द एंटायर कंट्री by that standard would be going to polls
in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80 plus voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके टोटल वोटर्स की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80 plus 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो इट हैज़ इम्प्रूव्ड because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफ़ी बड़ा है. तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो electoral roll है वो पूरी तरीके से pure हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, सीनियर सिटीजन्स, ट्रांसजेंडर्स, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आए. सो दिस इज द एफर्ट. हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल. सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट in the human development indices in the entire country, in the amongst the voters. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 years in these 5 states. And as you are all aware, there was an amendment for qualifying dates to be changed to 4 dates instead of the 1st January of the every year. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that amendment which we brought. And in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that
we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. From Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज विच आर पॉसिबल. हाउ डू वी डू दैट? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डाला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media's website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. ड्राफ्ट रोल्स विल बी पब्लिश्ड ऑन 17/10/23. तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे इज वुड बी अंडरटेकन बाय BLOs फ्रॉम 17/10/23 टू 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO और थ्रू दी वोटर हेल्पलाइन BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, लाइट, हेल्प डेस्क, साइनेज, सभी पोलिंग स्टेशंस पे सुविधा होगी. और प्रयास ये है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें. शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं
कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also they will have the facility to vote from their home. फॉर्म 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े. वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं. इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं. बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग. और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 किलोमीटर्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट. पीपल विल गो एंड दिस इज द काइंड ऑफ रिवर्स एंड ऑल टेरेन दे विल क्रॉस. दिस इज इन मिजोरम, 22 नॉन मोटरेबल पोलिंग स्टेशंस. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं. और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं. और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं. स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी. फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे. और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफ़ी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है. नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था. वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहाँ से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है. तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी. तो इन सभी चीज़ों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, and in which the contribution report which is due of every year by 31st October would have to be filled. Similarly, annual audit reports पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी IT टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे, और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट
30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प in ease for the political parties to fill up these details online, and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। All that with the help of the respective enforcement agencies would get collated, and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, पूल देयर रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश सिनर्जीज। पांचों एक साथ मिलकर काम करें, और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए very strong watch, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस, एंड all the checking of cargo movement through non-scheduled chartered flights. This we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है। कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो। मनी पावर, all these agencies have been strictly asked to keep strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep
पोलिंग पार्टीज टू मूव ओनली इन दी ऑफिशियल व्हीकल्स, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था, और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the micer to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको तो इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को रिजल्ट्स आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले आपको जानकारी दे दें, 2 फेज में यहां पर इलेक्शन होने हैं। 7 नवंबर को, 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को चुनाव होंगे और रिजल्ट आ जाएंगे 3 दिसंबर को। तो देखिए, जिसका इंतजार था, चुनावी शंखनाद हो चुका है। चुनावी यहां पर बिल्कुल फूंक दिया गया है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा और 3 दिसंबर
ये वो तारीख होगी जब रिजल्ट सबके सामने होंगे। एक एक करके राज्यवार हम जानकारी देते हैं कि किन राज्य में कहां पर कब चुनाव होने और कब रिजल्ट होगा। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जैसा कि आकांक्षा बता रही है। और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार ने बताया, आकांक्षा, क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है छत्तीसगढ़ में चुनाव को संपन्न कराना। 2 फेज में यहाँ पर चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 13 नवंबर को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि 20 तारीख तक चलेगी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा और इसके साथ आपको बता दें 17 नवंबर को मतदान होगा मध्य प्रदेश में और 5 दिसंबर तक सब सारी प्रक्रिया निपटा ली जाएंगी। 3 दिसंबर को तमाम राज्यों के विधानसभा के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। तो 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव, जो दूसरे चरण का मतदान होगा वो 17 नवंबर को होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, चुनावी रणभेरी बज चुकी है। और देखिए, वोटिंग 7 नवंबर को मिजोरम में होगी, छत्तीसगढ़ में पहले फेज की होगी और इसके साथ जो गणना है, मतगणना है 3 दिसंबर, यानी कि 3 दिसंबर को तय हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार 5 राज्यों में। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 7 नवंबर को पहले एक फेज में चुनाव होने हैं। तो जब फर्स्ट फेज में बाकी राज्यों में 3 राज्यों में जहां पर चुनाव वोट डाले जाएंगे, मध्य प्रदेश में भी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सिंगल फेज, एक फेज में यहां पर चुनाव संपन्न होंगे और 3 तारीख को परिणाम आएंगे। यानी कि आकांक्षा, जो फर्स्ट फेज जो है वो 3 राज्यों में, चलिए 17 नवंबर को हम अपडेट करें। 17 नवंबर को फर्स्ट फेज के मध्य प्रदेश में चुनाव है, यानी कि 7 तारीख को अगर फर्स्ट फेज में छत्तीसगढ़ में होंगे, 17 तारीख को जब सेकंड फेज में छत्तीसगढ़ में वोटिंग होगी, उस समय मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम खास तौर पर क्योंकि लगातार फोकस कर रहे हैं आकांक्षा, इस वजह से हम देखें तो 17 तारीख को सिंगल फेज में चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में और 3 तारीख को इसके परिणाम आ जाएंगे। बिल्कुल, तो 3 दिसंबर ये वो तारीख होगी जब राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा, तमाम जो किस्मत का पिटारा है वो खुलेगा तमाम कैंडिडेट्स का। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होना है और ठीक 3 दिसंबर को रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ हो गया, स्पष्ट हो गया है। राजीव कुमार ने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को एक फेज में चुनाव होगा, वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। इसके अलावा मिजोरम में भी चुनाव होंगे 7 नवंबर और 3 दिसंबर को ये रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के आगामी विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा करते हुए राजीव कुमार ने कहा है कि पीडब्ल्यूडी के कुल मतदाताओं की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। देखिए, 7 और 17 तारीख ये नवंबर 2 चरणों में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर को वहां पर मतदान होगा और 3 दिसंबर ये वो तारीख है जिस दिन तय होगा कि अब की बार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में किन की सरकार। और जानकारी जैसे कि दी गई कि मिजोरम में 17 दिसंबर 2023 यानी कि इस साल के आखिर में मिजोरम सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 16 जनवरी 2024 और उससे पहले ही यहां पर चुनाव निपटा दिए जाएंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, जैसा कि राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त जानकारी दे रहे थे कि संवेदनशील इलाकों में शुमार है छत्तीसगढ़, इसलिए यहां पर 2 चरणों में मतदान होगा। और राहुल कयास भी यही लगाए जा रहे थे, पहले से ये माना जा रहा था और हमने भी ये जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में इस बार फिर पिछले बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे और तारीख भी अब सामने है। राहुल, उसकी मुख्य वजह यही है आकांक्षा की चुनौतियां होती हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित राज्य भी माना जाता है। ऐसे में 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराना पड़ता है क्योंकि फोर्सेस की जरूरत होती है, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है। शायद यही वजह है क्योंकि हर बार 2 चरणों में चुनाव होते हैं। इस बार भी यही तय हुआ। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे तो वहीं 17 तारीख को मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे। यहाँ पर सिंगल फेज, एक ही फेज में चुनाव संपन्न होंगे
और छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां हमने देखा, आकांक्षा कांग्रेस और भाजपा ने एडी चोटी का जोर लगा रखा है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं यहाँ पर जिस पर सरकार ने काम किया है, कांग्रेस सरकार ने गारंटियों को जनता के सामने रखा है, भाजपा केंद्र की योजनाओं को लेकर चल रही है। तो ऐसे में ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है। एक ही सूची जो है भाजपा की आई है आकांक्षा, ऐसे में ये देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे अब इस दौरान राइज होते हैं। बिल्कुल, और देखिए चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो गया है और अब चुनावी बिसात बिछने लगेगी। मोहरे अब यहाँ पर पूरी तरह से सज जाएंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। देखना होगा कि शहमाद की इस बाजी को अपने नाम कौन करता है, किसकी सरकार बनती है। तो छत्तीसगढ़ में 7 और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा और रिजल्ट 3 दिसंबर को हमारे सामने होंगे कि अब की बार किसकी सरकार। और सरकार को लेकर के आपको बता दें, आप भी IBC 24 पर मेगा कवरेज देख रहे हैं। मेगा कवरेज में हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ही फेज में चुनाव होना है 17 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 7 नवंबर, दूसरा चरण 17 नवंबर और इसी दिन मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में 230 सीटों पर चुनाव हो जाएंगे और 3 दिसंबर को हमारे सामने फैसला होगा। जनता तय कर लेगी कि इस बार वो सरकार किसकी बना रही है। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है, जैसा कि हमने आपको जानकारी ही दी थी। सबसे पहले IBC 24 ने आपको बताया था और ये भी हमने स्पष्ट कर दिया था कि 3 दिसंबर के पहले ही शायद नतीजे आ जाएंगे। आज सुबह जैसे ही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें जानकारी मिली, हमने जब पूरी जानकारी जुटाई तो ये स्पष्ट हो गया था कि छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। और टैली के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुए थे उस दौरान तब किसकी पार्टी को कितने सीट्स मिले थे और अब देखिए 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि अब की बार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ में 7 और मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। गढ़ में अब दंगल होगा और मध्य प्रदेश का महासमर देखेंगे हम। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा। लीजिए साहब, तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम दर्शक जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं, तारीखें आ चुकी हैं चुनाव की। और अब छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव, 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 फेज में चुनाव होगा और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। मध्य प्रदेश में केवल 1 चरण में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब पहले चरण में जो छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, इसमें 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ का पहला फेज होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे। आप ये देखें, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 7 नवंबर को और दूसरा चरण होगा 17 नवंबर को। इसी तरह से मध्य प्रदेश में केवल 1 फेज में वोटिंग होगी, वो होगी 17 नवंबर को और सभी राज्यों के 5 राज्यों के नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर वो बड़ी तारीख होगी जब जनादेश आपका खुलकर सामने आएगा देश के। मध्य प्रदेश का महासमर हो या गढ़ की चुनौती, कौन सा दल सरकार बनाएगा ये स्पष्ट होगा 3 दिसंबर को जब नतीजे घोषित किए जाएंगे। और अब की बार छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में और मध्य प्रदेश में 1 चरण में चुनाव है और पहली जो तारीख होगी चुनाव की छत्तीसगढ़ की फर्स्ट फेज की, वो 7 नवंबर है। इस लिहाज से 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है पहले चरण की वोटिंग को लेकर। बिल्कुल, और नॉमिनेशन की तारीखें भी आ चुकी हैं पुनीत जी। 13 से 22 नवंबर तक नॉमिनेशन करना होगा। छत्तीसगढ़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, नामांकन आपको दर्ज करना होगा 13 से 22 नवंबर के बीच। मिजोरम की अगर बात की जाए तो 7 नवंबर को यहां भी मतदान होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट यहां भी आ जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होने हैं। ये 5 राज्यों की एक साथ तारीखें आप देख लें अच्छी तरीके से। इन्हीं तारीखों पर वोट पड़ने हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये तारीखों के ऐलान हो गए हैं। तो देखिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होना है। 23 नवंबर को राजस्थान में, 17 नवंबर को मिजोरम में और 30 नवंबर को आप मतदान कर पाएंगे अगर आप तेलंगाना वासी हैं। तो मध्य प्रदेश में होंगे 17 नवंबर को 1 चरण होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर को वोट पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर। ये तारीखों के ऐलान अभी किए हैं
चुनाव आयुक्त ने घोषित। मध्य प्रदेश में एक फेज में केवल 17 नवंबर को एक फेज में चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को एक फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होंगे, एक है 7 नवंबर और दूसरा है 17 नवंबर। सभी राज्यों की मतगणना एक साथ 3 दिसंबर को होगी और 3 दिसंबर को एक साथ सभी के नतीजे घोषित होंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा फोकस अब की बार फ्रेश वोटर्स पर है। 60.2 लाख 18 से 19 साल के बीच के फ्रेश वोटर्स हैं, नए वोटर्स हैं। 80 साल से अधिक आयु वर्ग के जितने भी मतदाता हैं उनके लिए अब की बार एक नई फैसिलिटी घर से मतदान करने को लेकर के है। निर्वाचन आयोग का यह मानना है कि उन्होंने पूरा इंतजाम किया है कि वोटिंग प्रतिशत पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़े और आप सबकी भी, मतदाताओं की भी मदद मांगी है, सुझाव मांगे हैं और अगर आपको सुधार कार्य कराना है किसी भी किस्म का तो उसका भी वक्त अभी दिया है। ठीक है, और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि 13 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाएगी, जो कि 21 अक्टूबर तक रहेगी। और आपको बता दें नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन है 20 अक्टूबर तक आप नॉमिनेशन कर पाएंगे। स्क्रूटनी होगी 21 अक्टूबर को। और सीधे चलते हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हजार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। एक सूचना और चुनाव आयोग ने दी है, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु समय और दिया गया है। यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन का समय दिया है। एक नई चीज जो जारी की है, आपराधिक छवि के लोगों को 3 बार विज्ञापन देना होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बेल में हैं, कई लोग और स्थिति है, तो उनको 1 बार नहीं 3 बार देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होके 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर और उसके बाद अलग अलग फेज में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। मगर मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र के इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं। डॉक्टर साहब, सवाल एक है, चुनाव में और बीजेपी क्या मानकर चल रही है, नतीजे किस तरफ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को 2 तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। पहले चरण में हमने न केवल दंतेवाड़ा से बल्कि जसपुर से, और ये देखें आप 5 राज्यों के चुनावी प्लान को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 17 नवंबर को एक चरण में मध्य प्रदेश में वोट पड़ने वाले हैं। 7 और 17 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने वाली है। राजस्थान में एक चरण में 23 नवंबर को वोट पड़ेंगे।
7 नवंबर को मिजोरम में वोट पड़ने हैं और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होनी। ये अलग अलग चुनावी तारीखें हैं। पूरा चुनावी कार्यक्रम आपके सामने है। बड़ी बात ये, मध्य प्रदेश में 1 फेज में और छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने हैं और दूसरे फेज के बाद 3 तारीख को एक साथ इन सभी राज्यों के चुनावी नतीजे घोषित किए जाने। और पुनीत जी, आपको भी याद होगा कि 5 राज्यों में पिछली बार इन्हीं 5 राज्यों में 11 दिसंबर को रिजल्ट आए थे, लेकिन इस बार ठीक उसके 1 हफ्ते पहले यानी कि 3 दिसंबर को ही 5 ही विधानसभा चुनाव के राज्यों के रिजल्ट हमारे सामने होंगे। यानी कि हमें लग रहा था कि इस बार काफी देरी होगी, लेकिन प्रक्रिया और उसके पहले ही पूरी हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में आप देखें, दीपावली के पहले एक चरण और दीपावली के बाद दूसरा चरण, ये मतदान का होगा और मतगणना 3 तारीख को होनी है। यानी इंतजार रहेगा दलों को 3 तारीख का, 3 दिसंबर का, जब देश को भी पता चलेगा कि 23 में किसने बाजी मारी है। एक और बड़ी बात जो आज निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि 1/6 यानी 6वां हिस्सा पूरे देश की मतदाता आबादी का अब की बार वोट करेगा। 16.14 करोड़ कुल मतदाता हैं, जिनमें 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं। फ्रेश वोटर्स की संख्या 60.2 लाख है और इन्हीं 18-19 साल के वोटर्स पर दलों की और निर्वाचन आयोग की भी नजर है। बिल्कुल। और अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मतदाताओं की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार छत्तीसगढ़ में है और मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी जो पहली बार के मतदाता हैं, जो 18+ हो चुके हैं और अब उन्हें मतदान अपने मताधिकार का उपयोग करना है, उनकी भी संख्या बढ़ी। और इसलिए पुनीत जी, मुझे लगता है कि इस बार यंगस्टर्स को साधने के लिए बीजेपी भी उतना ही एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी और उतना ही कांग्रेस भी। और लगातार रिएक्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। नवीन सिंह सहयोगी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं, उनका रुख हम कर सकते हैं। नवीन, बताएं, इस वक्त मध्य प्रदेश में सिंगल फेज में चुनाव होने, रिएक्शंस मिले आपको कुछ? देखिए, बिल्कुल बेसब्री से इंतजार था आचार संहिता का और आचार संहिता लग चुकी है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कांग्रेस बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि आचार संहिता लगे, उसके बाद अपने वचन पत्र के तमाम एजेंडे आगे बढ़ रही थी। कांग्रेस इंतजार कर रही थी कि आचार संहिता लगे, उसके बाद अपने वचन पत्र के तमाम एजेंडे वो जारी करे। अब्बास हफीज हैं, क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी पहले से तैयार है। हम तो पिछले 3.5 साल से, जब से सरकार गलत तरीके से गिराई गई है, तब से हम मैदान के अंदर मौजूद हैं। अब जब आचार संहिता लग चुकी है तो हमारी उम्मीद है कि जिस तरह से इसका पालन होना चाहिए वो कराया जाएगा। कोई अधिकारी कर्मचारी भेदभाव के साथ काम नहीं करेगा और ये हमारी तैयारी रहेगी हर जगह के ऊपर कि हमारे कार्यकर्ता इस पर पूरी नज़र बना के रखें कि कहीं पर भी कोई उल्लंघन ना हो रहा हो। अगर कहीं उल्लंघन होता है और फिर से दमो चुनाव की तरह कोई धन बल का इस्तेमाल होता है तो उसकी ऊपर कठोर कार्रवाई करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जो वचन हैं उनको बहुत जल्दी जनता के बीच में लेकर आएंगे। बहुत जल्दी आपको सूची भी सामने दिखेगी कांग्रेस पार्टी की। बिल्कुल, कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी इनके जो वचन पत्र के जो बड़े हिस्से हैं उसको कॉपी कर रही है। लाडली बहना योजना भी उसी में था। आचार संहिता का बड़ा लंबे अरसे से इंतजार था, आपको क्या उम्मीद है और क्या तैयारी है? देखिए, लोकतंत्र के युद्ध का आज बिगुल बच चुका है। जो लोकतंत्र का जो युद्ध होता है जिसमें जनता अपनी मर्जी से अपना मत अधिकार का प्रयोग कर कर अपना प्रत्याशी, अपना नेता चुनती है, उसका आज बिगुल बच चुका है। और हम यही कहेंगे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी तरह से तैयार है। आपने देखा कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 साल में निरंतर जनता के हितों की बात की, जनहित की बात की, महंगाई बेरोजगारी की बात की, महिला सुरक्षा की बात की, आदिवासी सुरक्षा की बात की, दलितों की बात की है। तो आज देखें, आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। और जो 17 तारीख जो मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए तारीख आई है, मैं दावा करता हूं कि इस तारीख को जनता कांग्रेस का बटन दबाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। क्या तैयारियां? तारीख आ गई है, 17 तारीख को वोटिंग होगी। कांग्रेस की क्या तैयारी है? राहुल गांधी दावा कर रहे हैं 150 सीटों के साथ सत्ता में आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र का ये उत्सव मनने जा रहा है। आज इसकी औपचारिक घोषणा हो गई। कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही थी और आपने देखा था कि चूंकि जनता के मन में कांग्रेस है, जनता ने 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल देखा है। जनता को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात पसंद आई थी, जो बिजली के बिल उसके घर पहुंचे थे। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था। जनता आज भी उम्मीद कर रही है कि कमलनाथ की सरकार, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश सहित सारे राज्यों में बने, जिससे उसे अच्छे दिन आज आए।
बिल्कुल कांग्रेस को उम्मीद है कि सत्ता में वापसी होगी। राहुल गांधी 150 सीटों के साथ कमबैक करने का दावा कर रहे हैं। और सबसे खास बात पुनीत कि कांग्रेस बार बार ये दावा कर रही थी कि इनके जो वचन पत्र के एजेंडे हैं वो बीजेपी कॉपी कर रही थी, और आचार संहिता के बाद तमाम घोषणाएं, तमाम जो वादे हैं उसको कमलनाथ जी वचन पत्र के जरिए जारी करेंगे। तो फिलहाल आचार संहिता लग गई है। अब ये माना जा रहा है कि वचन पत्र के लिए टेबल एक्सरसाइज और तेज होगी और जल्दी ही कांग्रेस का वचन पत्र आएगा। बिल्कुल, आपने जो रिएक्शन बताए हैं इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सरकार और ज्यादा सीटों से लौटेगी। कांग्रेस कहती है परिवर्तन का मन जनता ने बना लिया है, सरकार भांप चुकी है, अब आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के एक साथ नतीजे आएंगे। 2024 में देश के चुनाव होने हैं और उनसे चंद दिनों महीनों पहले जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के नतीजे आएंगे, उनसे वातावरण का, देश के मिजाज का एक बड़े हिस्से का पता लगेगा। इसीलिए इसको आप सेमीफाइनल के तौर पर भी देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां 2-2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 7 नवंबर को पहला फेज होगा और 17 नवंबर को दूसरा फेज होगा। यानी पहले चरण की वोटिंग में अब 1 महीना भी नहीं बचा है और 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के भी नतीजे घोषित किए जाएंगे। क्या यहां पर मुख्यमंत्री सरकार बचाएंगे, क्या यहां कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी या भारतीय जनता पार्टी का बदलबो का नारा पूरा होगा? उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बच पाएगी, बीजेपी रिपीट होगी, क्या एक बार फिर इतिहास बनाएगी या कांग्रेस पार्टी का परिवर्तन का नारा कामयाब होगा? इन सारे सवालों के जवाब 3 तारीख को आपको मिलने हैं। और जैसा भी आकांक्षा भी आपको याद दिला रही थी, पिछली बार 11 दिसंबर को नतीजे आए थे, अब की बार 3 दिसंबर को, एक सप्ताह पहले देश को पता चल जाएगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार। राजस्थान में भी बड़ी कड़ी टक्कर है, क्या गहलोत सरकार रिपीट होगी या अब की बार जो इतिहास बनेगा या पुराना रिकॉर्ड टूटेगा, यह भी देखना होगा। हर बार वहां अल्टरनेशन में सरकारें बदलती नहीं। चलिए, तो एक के बाद एक राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है और सुबह से ही IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देख रहे हैं। आज का दिन बेहद बड़ा, क्योंकि और देखिए वीडी शर्मा जनता से आह्वान करता हूं कि विकास और गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से बेहसरी दिलाए। थोड़ा कम वक्त मिल रहा है चुनाव, कोई कम वक्त नहीं है चुनाव में। जो ये कम वक्त उनके लिए जो ऐसे लोग रहते हैं जो परीक्षा के समय तैयारी करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो 365 दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगी होती है और जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो जिसने काम किया है उसे जनता समर्थन देती है। तो हम कोई 24 घंटे की तैयारी वाले लोग थोड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जनता की सेवा में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान में लगी है। यही हमारी ताकत है, विकास और गरीब कल्याण। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ऐतिहासिक दावा कितना दावा? अरे दावा ऐतिहासिक बहुमत से आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी। तो आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। और चुनाव तारीखों के बाद पहली प्रतिक्रिया जो है वीडी शर्मा जी ने IBC 24 के दर्शकों के लिए दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। देखिए पुनीत जी, इससे पहले जब कांग्रेस की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे तो उनका भी यही दावा था कि इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी और कुछ ऐसा ही दावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली उन्होंने IBC 24 से बात की और दावा यही कि इस बार 175 पार। बड़ा दिलचस्प ये दावों का सिलसिला होगा जो आने वाले वक्त में बदलता है या और बुलंद आवाज में किया जाता है, देखना होगा। हालांकि परिस्थितियां बदली हैं पखवाड़े दर पखवाड़े। हर पखवाड़े चुनावी तैयारियों और सभाओं ने माहौल में कितना परिवर्तन वास्तविकता में लेकर आए हैं, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। बहरहाल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक चरण में वोटिंग होगी और नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को। तैयार थी और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने पहले सूची जारी करके चुनाव का जो माहौल वो बना लिया था और अब भारतीय जनता पार्टी पूरे उसमें जोर शोर से उतर चुकी है। साथ ही साथ ये आप कितना है भारतीय चुनाव की तारीखों का ऐलान चुका है, कितनी तैयार है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी सूची कब तक आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव के मोर्चा में जाने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। मतदाता भी उत्सुक है। इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाने के लिए जितना जल्दी वक्त मिले उतना ही समय में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाना चाहती है। तो मुझे लगता है
कि मतदाता और कार्यकर्ता तैयार हैं इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। ये बताइए, आप लोगों ने 21 प्रत्याशियों की सूची तो पहले जारी कर ली थी, बाजी मार लिया था, अब दूसरी सूची आने में कहां मामला अटक गया और विरोध भी हो रहा है संभावित सूची को लेकर, उसको किस तरह से निपटेंगे आप? कहीं कहीं लोगों के मन में टिकट के प्रति ज़्यादा संख्या में प्रत्याशी होने की वजह से लोगों के मन में तकलीफ दिखती है। उनको साथ बैठकर मैं स्वयं बैठ रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठ रहे हैं और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं, इसका निराकरण करेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पर्याप्त समय मिलेगा तैयारी का आप लोगों को? बिल्कुल पर्याप्त समय, 7 तारीख और 17 तारीख पर्याप्त समय है और इस समय में भारतीय जनता पार्टी 2 महीने से तैयारी कर रही है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे साफ हैं। छत्तीसगढ़ में मुद्दे ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़े मुद्दे हैं जन घोषणा पत्र में वादे जो अधूरे रह गए हैं वो, दूसरा विकास पूरी तरह से ठप हो गया है और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में किए गए विकास काम जो लोग आज याद कर रहे हैं। कुछ फेस होगा क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का? सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आपने सुना कि ये थे रमन सिंह जी और इनका कहना है कि जो विरोध चल रहा है टिकट को लेकर वो। तो राजेश मिश्रा जी के साथ में पूर्व सीएम रमन सिंह को आपने सुना, वो कहते हैं कि परिवर्तन का मन बना लिया है, सबसे प्रमुख मुद्दा अधूरे वायदे और भ्रष्टाचार का रहेगा। भोपाल ये चलेंगे। नवीन सिंह इस वक्त पीसीसी कांग्रेस मुख्यालय पर मौजूद हैं, सीधे नवीन का रुख करेंगे। नवीन, आप भी जरा प्रतिक्रिया लें। एक ही तारीख में चुनाव हो रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस को बहुत बेसब्री से इंतजार था आचार संहिता लगने के लिए। कांग्रेस ने अपने बहुत सारी रणनीति सिर्फ आचार संहिता के लिए बचा के रखी थी। इस वक्त मेरे साथ शुभा ओझा हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, तारीखें आ गई हैं, 17 तारीख को चुनाव है, क्या उम्मीद कर रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है। आचार संहिता लगने से अब कम से कम ये हो जाएगा कि शिवराज सिंह जी की जो झूठे वादों की मशीन दिन रात चल रही थी उस पर रोक लग जाएगी। दूसरी बात, जो सरकारी कर्मचारी बंधुआ मजदूर की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह उनका दुरुपयोग किया जा रहा था भीड़ इकट्ठी करने में, इवेंट कराने में, उस पर रोक लग जाएगी। और तीसरा, जनसंपर्क जिस तरह से मीडिया हाउसेस पे दबाव बनाकर फेक न्यूज़ और दुरुपयोग कर रही थी उस पे भी रोक लग जाएगी। मैम, एक चीज आप लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि बीजेपी जो है आपकी तमाम वचन पत्र के हिस्सों को कॉपी कर रही है, तो अब आप लोगों ने ये भी कहा था आचार संहिता के बाद हम लोग बहुत मजबूत एक मुकम्मल लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन में, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा था कि 1500 रुपये हम महीना बहनों को देंगे, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने 18 साल इस प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, वो नहीं। तो कांग्रेस पार्टी कहती है उनके वचन पत्र की कॉपी तो कर ली, लेकिन जनता ने जो मन बनाया उसका क्या होगा? तो ये हम 2 इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इलेक्शन ब्रेकिंग है। मध्य प्रदेश में जैसा कि हमने आपको जानकारी दी 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और जो 2 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं उसकी भी आपको जानकारी दे दी कि पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होंगे और जो दूसरा चरण है 17 नवंबर को 70 सीटों में उस पर मतदान होंगे। तो देखिए, अलग अलग चरणों में जो चुनाव होने हैं, अब यह भी साफ हो गया है कि पहले चरण में यानी कि 7 नवंबर को 20 सीट पर और 17 नवंबर को दूसरे चरण पर 70 सीटों पर मतदान होगा। इलेक्शन ब्रेकिंग मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की। और पुनीत जी, इसके साथ ही अपडेट अपने दर्शकों को ये बता दें, जैसे कि कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान डबल स्पीड में घोषणा कर रहे हैं, घोषणा मंत्री वो बन गए। और देखिए, विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने का असर हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर और बघराजी के दौरे पर रहने वाले थे, उनका वो कार्यक्रम रद्द हो गया है। भू अधिकार पत्र वितरण और आदिवासी सम्मेलन के कार्यक्रम थे, ये कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। इस तरह से अब हर एक चीज पर निर्वाचन आयोग की और प्रशासन की नजर रहने वाली है। जैसा हम आपको बता ही रहे हैं, सुबह से आदर्श आचार संहिता चुनावी कार्यक्रम के आते ही लग जाती है, ये लागू हो चुकी है और इसके बाद विभिन्न दलों को अपने हर कार्यक्रम का, हर दौरे का ब्यौरा देना पड़ेगा और उसके पहले अपने कार्यक्रमों की परमिशन, इजाजत लेनी पड़ेगी। इसका पूरी जानकारी, इसके पूरे ब्यौरे के साथ ये जानकारियां दर्ज कराने के लिए भी दल अब बाध्य हो जाएंगे। इसीलिए विपक्ष जहां कहीं भी जिन दलों का है वो ये कहता है
कि उन्हें मुक्ति मिलेगी सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से, उन्हें मुक्ति मिलेगी अघोषित तौर के ऊपर होने वाली ऐसी घोषणाओं की जो जमीन पर नहीं दिखती हैं, लेकिन उनका ऐलान करके केवल चुनावी लाभ लिया जाता है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में होने हैं और बड़ा अपडेट जैसा आकांक्षा भी आपको बता रही हैं कि फर्स्ट फेज में 20 सीटों पर वोट पड़ेंगे और बाकी दूसरे चरण में 17 तारीख को 70 सीटों के ऊपर मतदान होंगे। कुल 90 सीटें हैं यहाँ और इन 90 सीटों में से 46 सीटें जितनी बहुमत के लिए आवश्यक है सरकार बनाने के लिए कौन लाता है, ये आप लोग तय करेंगे, जनता तय करेगी। अब की बार कुल मिलाकर अगर हम राज्यवार वोटर्स की संख्या को देखें तो छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ वोटर्स हैं और इन वोटर्स को ही तय करना है इन 2 फेजेस में कि 90 सीटों में 46 सीटें या उससे अधिक लाकर कौन सरकार बनाता है। ये जादुई फिगर है। मध्य प्रदेश में देखें केवल एक चरण में 17 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं, दीपावली के बाद एक फेज में, और उसके ठीक बाद 3 तारीख को सारे राज्यों के नतीजे एक साथ आएंगे और पता चलेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक और बार सरकार बना रही है। और दूसरी बात, क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने जो केंद्र का रुख न करते हुए मध्य प्रदेश में जो जम गए, डट गए, क्या उनका ये परिवर्तन का नारा कामयाब होगा, ये पता चलेगा 3 दिसंबर को। बिल्कुल। और देखिए जो चरणों की हम बात कर रहे हैं कि इस बार देखिए मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, मतदान आपको करना है मध्य प्रदेश वासियों को लोकतंत्र के इस महापर्व में, और 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 7 नवंबर को पहला चरण, यहां पर 20 सीटों पर मतदान होना है और 17 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान होंगे। इसमें 70 सीटों को कवर किया जाएगा। और देखिए अब सामने आ गया कि बस्तर की सभी 12 सीट, राजनांदगांव, खैरागढ़ और मौला मानपुर जिले की 6 और कवर्धा जिले की 2 सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे और बाकी की जो 70 सीट रह जाती हैं उन पर मतदान होना है 17 नवंबर को। यानी कि पुनीत जी जो अति संवेदनशील है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उनमें मतदान पहले ही चरण में हो जाएगा 7 नवंबर को 20 सीटों पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ये सीटें काफी निर्णायक रहेंगी। बस्तर जिसने जीता उसे सत्ता की चाबी के तौर पर छत्तीसगढ़ में देखा जाता है। मोला मानपुर अगेन नक्सल प्रभावित इलाका है। इन तमाम जगहों पर जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया इन दोनों चरणों में, ये महत्वपूर्ण है। बस्तर की 12 सीटें, राजनांदगांव, खैरागढ़, मोला मानपुर ये 3 सीटें, 6 और कुल मिलाकर कवर्धा की 2 सीटें। पहले चरण में इन तमाम 20 सीटों के ऊपर ही चुनाव होने। तो आप देखें बस्तर की 12 सीटें, खैरागढ़, मोला मानपुर, राजनांदगांव ये 6 सीटें और कवर्धा जिले की 2 सीटें। इस तरह कुल मिलाकर के 20 सीटों के ऊपर फर्स्ट फेज में 7 तारीख को वोट पड़ेंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और दूसरे में बाकी की बची मैदानी इलाकों की सभी के सभी 70 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तारीखें आप याद रखें, 7 नवंबर और 17 नवंबर ये छत्तीसगढ़ में पोलिंग की डेट्स हैं, वोटिंग की तारीखें हैं। 2 चरणों में चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को नतीजे आपके सामने होंगे। मध्य प्रदेश में केवल 17 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे।